आप मेरी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा के। तो चलिए मिलते हैं न्यू स्टोरी में। Into the Unknown by Arthur Conan Doyle. Professor Challenger was a scientist who wanted to prove the dinosaurs still exist. At the Royal Society in London, she invites volunteers for an expedition for this purpose. 3 men, Professor Summerlee, Lord John Roxton, and Edward Maloney, immediately accept Challenger's proposal. They would accompany her in search of the lost world. The explorers now reach a land far away, hidden from all civilization. What is there? Wood and marsh and dense jungle? Who knows what it may shelter? And there to the south, a wilderness of swampy forest. The unknown is up against us on every side. Outside the narrow lines of the rivers, what does anyone know? Who will say what is possible in such a country? Why should Challenger not be right? Summerlee, did you see that? What do you think it was? A pterodactyl. It was a stork, Professor Challenger, a big one. Lord John is talking to Edward Maloney. He has a pair of binoculars in his hand, and his face is serious. I focused on it before it got over the trees. I might be wrong, but that was no stork. In fact, it wasn't a bird at all. Later that night, It was there that the pterodactyl was perched. Professor Summerlee is convinced that it was a stork. Unfortunately, this stork had no feathers, a leathery skin and wings, and teeth in its jaws. the next morning, if you have explored the east, we should travel along the base of the cliff to the west and seek for another point for our ascent. However, I'm not convinced that the plateau contains any form of life whatsoever. I have surveyed about 6 miles off the cliff to the east of us, finding no possible way up. What then shall we do now? Now, sir, does this help you to realize that the plateau contains some animal life? I think that we should break up our camp immediately and travel westward for some means of ascent. The 4 explorers set off. The ground at the foot of the cliff was rocky and broken, so that the going was slow and difficult. They arrive at an old camp. This must be Mabel White's. In her travels to the Amazon, Professor Challenger had found a diary belonging to Maple White, an American. For Professor Challenger, the contents of Maple White's diary were proof that dinosaurs still exist. Our pioneer has left this sign so that any party which follows him may know the way he has taken. Perhaps we shall come upon some other indications as we proceed. Maple White again. He had a sense that worthy footsteps would follow close behind him. This is certainly good evidence. We can only accept his guidance and continue westward. Yet another sign pointed them in the right direction. The party proceeded to enter the narrow gorge. The path was too narrow and steep to proceed further. The 4 explorers started to turn backwards, exhausted from their efforts of the day. The party sat down by the fire to roast food for dinner. The night was moonless, and there was a chill in the air. Suddenly, out of the darkness, there swooped something with a swish like an aeroplane. The next instant it was gone, and so was the dinner. A huge black shadow, 20 feet across, skimmed up into the air. For an instant the monster wings blotted out the stars, and then it vanished over the cliff. It was Summerlee who was the first to speak. Professor Challenger, I owe you an apology. I'm very much in the wrong, and I beg that you will forget what is past. Gentlemen, as you will all agree now, our backs may be against the wall,
But together we must find a way across the abyss and continue our search for the lost world. स्टोरी है, हम बता ही रहे थे आपको कि अब हम हिंदी में ये स्टोरी आपको बताएंगे। तो चलिए, आर्थर डॉयल के द्वारा लिखी हुई इनटू द अननोन स्टोरी। यहाँ इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है वो चैलेंज दे रहे हैं। जो साइंटिस्ट है प्रोफेसर चैलेंजर, वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को बोल रही है कि मैं एक प्रूफ कर सकती हूँ कि डायनासोर होते हैं। और अगर आप में से ये जो सब हो रहा है ये रॉयल सोसाइटी लंदन में हो रहा है, और उस जो प्रोफेसर है उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया था कि वो डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है, और उसके लिए उसको कुछ आदमियों की ज़रूरत थी जो साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे समरली देख सकते हैं, लॉर्ड जॉन रेक्सॉन देख सकते हैं, एडवर्ड मोलेनी देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों जेंटलमैन हैं। ये जो प्रोफेसर चैलेंजर है, इनके प्रपोज़ल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि नहीं, ऐसा डायनासोर अभी तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वो जो वर्ड है वो तो खो गया है। लेकिन अगर प्रोफेसर चैलेंजर अगर चाहती है तो ये प्रूफ करने के लिए वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाए। अभी ये चारों की चारों मतलब चैलेंजर और ये तीनों जेंट्स निकल पड़े हैं और एक जंगल की तरफ वो जा रहे हैं। और फिर बहुत घने जंगल की ओर जाते हुए ये चारों भी, सबको पता था कि किसी की जीत होने वाली है, किसी की हार होने वाली है। तभी ये एक आपस में बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमको कहीं पे शेल्टर भी तो लेना पड़ेगा, साउथ है क्या है। तो ये वाइल्डरनेस ऑफ अ सैम्पी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे जो बहुत घना था। और रास्ते कहाँ से कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं था। बीच में रिवर भी थी, बहुत घने घने पेड़ भी थे, बहुत अंधियारा भी छा गया था, और फिर भी ये अपनी कंट्री से बहुत दूर आ चुके थे। आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो प्रोफेसर्स है, चैलेंजर भी है, मैं प्रोफेसर चैलेंजर जो है वो उनको बोल रही कि समाज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तब वो दोनों तीनों जो है वो उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ स्टार्क मतलब जो पंछी है बड़े बड़े, उनके सिवा और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आप भी खुद देख सकते कि इस जंगल में क्या है। तो लॉर्ड जॉन जो है वो एडवर्ड मोलिनी को बता रहा है कि मैं जो उनके पास जो बाइनोकुलर है उससे वो दूर की चीज़ें सब देख सकते हैं। उनका फेस जो है वो बहुत ही सीरियस है, और वो सीरियस होके बातें कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। इन ट्रीज़ के बीच में मुझे अजीब सा कुछ दिख रहा है जो बड़ तो बिल्कुल नहीं है, स्टॉक भी बिल्कुल नहीं है, कुछ अजीब ही चीज़ है जो मैंने महसूस की है अपने आजू बाजू में। अभी ये तीनों भी अच्छे से आराम से थक गए हैं, तो इन्होंने फायर कैंप की जैसे फायर जला ली और ये सब बातें करने के लिए वहाँ पे बैठ गए हैं। और फिर वो पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर समरली, आपको क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा पंछी था, क्या था? हाँ, तो वो बताती है, प्रोफेसर जो चैलेंजर है वो बताती है कि हाँ, वो एक बड़ा सा पक्षी था जिसको विंग्स नहीं है, उसकी स्किन जो है ये वेदरी है, और उसके दांत जो है वो उसकी जॉज में हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ये उठते हैं तो उठने के बाद फिर से ये एक दूसरे को एक्सप्लोर करना मतलब बातें करना शुरू कर देते कि हम लोग ईस्ट में जाएंगे कि वेस्ट में जाएंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस एरिया देख लिया है कि अब हम लोगों को वेस्ट में जाना चाहिए। अब ये पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक जाना है, जाते जाते हम लोगों को ढूंढना है, तो ये सब चीज़ें तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ये जो हम एरिया में आ गए हैं ये प्लेन एरिया है, मैदान है। तो ऐसे मैदान एरिया में
ये डायनासोर का होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तभी प्रोफेसर चैलेंजर उन्हें कहते हैं कि मैंने सर्वे किया है और मुझे पूरा पता है कि यहीं पे कहीं पे डायनासोर होना ही चाहिए और हम लोगों को उसको ढूंढना ही पड़ेगा। तब वो प्रूफ के लिए बोलते हैं कि ये जंगल जो है, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा स्नेक जो है वो पेड़ से नीचे आता हुआ उसको दिखता है। तब वो बोलती कि अगर ये स्नेक यहाँ पे है, पाइथन यहाँ पे है, इसका मतलब हमें और भी कुछ बहुत सारी डेंजरस चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, एनिमल्स आपको मिलेंगे जो इन डेंजर एनिमल है वो सब हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो हम लोगों को वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और वो चारों के चारों अब और उनकी दिशा चेंज कर देते और जाना शुरू कर देते। इस बार जो जो मैदानी एरिया है वो ख़त्म हो चुका है और रॉकी एरिया लग गया है। तो रॉकी एरिया से चलते हुए इन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो स्लोली आगे जा रहे हैं और उन्हें तभी एक ओल्ड सा कैंप मिला है। ये किसी का पुराना सा ओल्ड कैंप है और इसमें अमेरिका के जो मैपल वाइट है ये उनका है। वहाँ पे उनकी डायरी भी मिली है जो उन्होंने जो ट्रैवल किया है वो प्रोफेसर चैलेंजर को मिल गई है और वो उसको खोल के देख रही है। उसमें उनको मिल रहा है कि अमेरिका से आए हुए जो राइटर है, जो साइंटिस्ट है मैपल वाइट, उनकी डायरी में उन्हें डायनासोर के कुछ चित्र मिल जाते हैं जो प्रूफ करते हैं कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया में डायनासोर हो सकता है। तब उन्हें एरो मिल गए। तो इस एरो से वो लोग उस तरफ जा सकते थे जिस तरफ मैपल वाइट ऑलरेडी गए थे और उन्हें डायनासोर मिले थे। तो प्रोफेसर चैलेंजर उन्हें बोलती है कि मैपल वाइट को पता था कि उनके पीछे उन्हें ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर आएगा और डायनासोर है उसे ढूंढने की कोशिश कोई ना कोई ज़रूर करेगा। तो शायद से इसीलिए ये एरो उन्होंने बना के रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम चारों को इन एरो की दिशा में जाना पड़ेगा और हमें जो डायनासोर का वर्ड है जो हमारे लिए समाप्त हो चुका है वो अब ढूंढना पड़ेगा। तो वो एरो की दिशा में मतलब वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब ऑलरेडी उन्हें पता है कि मैपल वाइट ने एरो करके रखे हैं तो जगह तो सेफ ही होगी। फिर उनको दूसरा एरो मिल जाता है जो राइट डायरेक्शन में बताता है, वो निकल पड़ते हैं। अब ये जो है ये दोनों तरफ से रॉकी होने के कारण बीच में जो दरार है वो दरार बहुत ही नैरो है। वहाँ से गुज़रना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी उसमें से जा रहे हैं। घुटन भरा एरिया है, हवा का बिल्कुल ही आना जाना नहीं है और ऐसे एग्जॉस्टेड एयर में से एक प्लेस में से वो पूरा दिन जा रहे थे। बाद में जब रात हुई तो खाने के लिए उन्होंने एक जानवर को मार के कैंप के फायर जला दिया और वहाँ पे वो बैठ गए। जब वो बातें कर रहे थे, अपना डिनर वो प्रिपेयर कर रहे थे, मून जो है घना जंगल होने के कारण बहुत कम ही लाइट उन्हें मिल रही थी, लेकिन फायर होने के कारण उन लोग एक दूसरे को देख सकते थे। तभी अचानक से एक घटना ऐसी घटी कि जैसे कि कोई एरोप्लेन क्रैश होता है और गिरता है वैसे कुछ गिरा और उसने उनका फूड जो था मतलब वो जो एनिमल जलाने के लिए रखे थे वो एनिमल को उठा के वो ले गए और इस बीच में जो है 2 प्रोफेसर नीचे गिर गए थे। अब जो शैडो थी मतलब जो उनका खाना छीन के लेके गई थी वो शैडो बहुत ही डेंजर थी। उन 20 फुट अक्रॉस मतलब इतनी ऊंचाई से हवा में वो तेज गति से दौड़ गई थी। ये तो कोई मॉन्स्टर के विंग्स लगते हैं, ऐसे वो बुरी तरीके से उसे देख रहे थे। और ये कुछ नहीं और दूसरा कुछ नहीं, ये डायनासोर ही था, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। वो बहुत बुरी तरीके से सरप्राइज होके देख रहे थे और ये तो समरलिन था जो उन्हें बता रहे थे कि देखो मैंने बोला था, ओह कुछ तो है। तब वो बोलते कि प्रोफेसर चैलेंजर मुझे एक्सट्रीमली मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, जिसे हम बोल रहे थे कि आप गलत है, डायनासोर हो ही नहीं सकता, अब हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों को लग रहा था वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं है।
तीनों जो जेंटलमैन है वो इसके लिए उनको सॉरी बोलते हैं। प्रोफेसर चैलेंज जो बोलती है कि चलो अब और आगे जाते हैं, जो खोया हुआ वर्ड है उसे हम ढूंढते हैं और लोगों को बताते हैं कि डायनासोर का अस्तित्व अभी भी है। तो मैंने तो यहाँ पे मेरी जो स्टोरी है मैंने आप लोगों को बता दी। डायनासोर की स्टोरी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। अब आप क्या करना है, ये पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पूरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।